میڈم تھینک یو جی. آگے پیچھے نہ اب باقاعدہ افتتاحی تقریب کے لیے میں آج کی چیف گیسٹ میڈم سارہ احمد اسپیشل مہمانوں سے گزارش ہوگی کہ آپ نیشنل اینتھم کے لیے کھڑے ہو جائیں. بچوں کے حقوق کے تحفظ کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے. مختلف احادیث سے یہ بات ثابت ہوئی ہے. ایک حدیث میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بچوں پر رحم نہیں کرے گا وہ ہم میں سے نہیں. یہ بات یہ اس کا ثبوت ہے کہ کتنی امپورٹنس ہے بچوں کے چائلڈ رائٹس کی اسلام میں. اور اس کے علاوہ جو ہمارے پرائم منسٹر اور چیف منسٹر صاحب ہیں وہ بھی بچوں کے حقوق کے تحفظ کو اپنی جو اہم پرائیورٹی سمجھتے ہیں. تبھی جو بھی معاملات کبھی کوئی پھنس جاتے ہیں بیورو ریلیٹڈ اور ہم کانٹیکٹ کرتے ہیں تو وہ فوری طور پر حل ہوتے ہیں. تو آئی گیو دیم دا کریڈٹ فار آل آف دس. یہ بیورو چائلڈ پروٹیکشن کا ساہیوال میں جو ہے وہ وال فوٹنگ کی بنیاد پر قائم کیا گیا. ابھی ہمارے پاس ہم نے اس کی ہائرنگ بھی نہیں کی ہے یہاں کے اسٹاف کی. ان کی سیٹیں بھی کریٹ ابھی جو ہے ہو رہی ہیں, وہ پروسیس میں ہیں اور آگے اس کی ہائرنگ ہوگی. لیکن ہم نے سوچا کہ یہ بہت ضروری ہے یہاں پہ جلد کھولنا چائلڈ پروٹیکشن بیورو, کیونکہ اس کی بلڈنگ تعمیر ہو چکی تھی. جی کرتے ہیں. اس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں عدنان لقمان صاحب کو کہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب باقاعدہ افتتاحی تقریب کے لیے میں آج کی چیف گیسٹ میڈم سارہ احمد اسپیشل چلڈرن جو انڈر پریولیجڈ ہیں, جو ورک شاپس میں کام کرتے ہیں, جو کہ سڑکوں پہ چوراہوں پہ بھیک مانگتے ہیں, اگر ان کو آپ مین سٹریم میں لاتے ہیں, مین سٹریم میں لانے کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں, تو پریکٹیکل عملی اقدامات کرتے ہیں, تو یقیناً یہ معاشرہ دن بدن ترقی کرے گا. مین سٹریم میں آئیں گے وہ بچے اور یقیناً معاشرے میں ایک اپنا کردار ادا کریں گے, معاشرے کو آگے لے کے چلیں گے. ان کو رکھنے کا انتظام ہے, ان کی میڈیکل ہے, ان کی بورڈنگ لاڈجنگ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا اچھا اسکول کا بھی انتظام کیا گیا ہے جہاں پہ ان بچوں کی بنیادی تعلیم بلکہ 8th تک تعلیم انہیں دی جائے گی, رسمی تعلیم جو ہے, اور اس کے ساتھ پھر ان کو ان کے لنکیجز بھی ڈیولپ کیے جائیں گے فار ہائر ایجوکیشن, کہ ان میں سے اگر کوئی ہائر ایجوکیشن میں جانا چاہے تو وہ اپنے تعلیمی سرگرمیوں کو جاری رکھ سکتے. ساہیوال جو ہمارا 9th ڈسٹرکٹ ہے پنجاب میں. ہمارے پاس ابھی فی الحال 1200 بچے ہیں جو رہ رہے ہیں پنجاب کے تمام 9 ڈسٹرکٹس ملا کے, اور ان بچوں کو ہم ہنر بھی سکھا رہے ہیں, کیونکہ مجھے لگتا ہے پرسنلی کہ تعلیم کافی نہیں ہے آج کل ایک جاب حاصل کرنے کی. تو تھینکس ٹو دی پرائم منسٹر اینڈ چیف منسٹر پنجاب. اب میں بات کروں گی کہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی بلڈنگ کی یہاں ضرورت کیوں پیش آئی, یہاں پہ ایسا کیا ہو رہا ہے. بچے جو ہیں وہ ہماری قوم کا مستقبل ہیں, اور جتنے ساہیوال کے بچے اہمیت رکھتے ہیں اتنے ہی
जितनी अहमियत पंजाब के दूसरे इलाकों के बच्चे रखते हैं, उतनी ही अहमियत जो है वो साहिवाल के बच्चे भी रखते हैं पंजाब गवर्नमेंट के लिए। इसलिए इस ब्यूरो को यहाँ कायम किया गया है। एग्जिस्टिंग स्टाफ, एग्जिस्टिंग बजट के साथ बहुत जल्दी में ये ब्यूरो यहाँ पर खोला है। इसकी कैपेसिटी 200 बच्चों के लिए है, लेकिन अभी हमने, क्योंकि मैंने आपको बताया कि स्टाफ की किल्लत की वजह से एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज में हमने जो खोले, हमने यहाँ 50 बच्चों के लिए एक बिल्डिंग तैयार कर दी है, फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं, फूड, शेल्टर, एजुकेशन, उनको हुनर सिखाने की सहूलियात, सब कुछ जो है ये हमने स्टार्ट कर दिया है। आपकी सड़कों पे साहिवाल की हमारे रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी हैं और वो हर रोज की बुनियाद पे हो रहे हैं। उसके अलावा जो चाइल्ड अब्यूज के, बच्चों के साथ ज्यादती, तशद्दुद के वाकयात पेश आएंगे, वो हमारी हेल्पलाइन 1121 पर इंफॉर्म करें और वो ब्यूरो यहाँ पे वो सर्विसेज देने को तैयार है। आज से प्रोटेक्शन ब्यूरो की जब से हमारी हुकूमत ने ये संभाला है इदारा, 3 साल में 16,816 बच्चे रेस्क्यू किए गए सड़कों से। ये वो बच्चे थे जो डेस्टिट्यूट एंड निग्लेक्टेड थे, जो वल्नरेबल थे, उनके साथ कुछ भी हो सकता था, वो सड़कों पे अकेले वहाँ पर मौजूद थे। उनको ब्यूरो ने अपनी तहवील में लिया हिफाजती, और न सिर्फ हमने उनको खाना पीना कपड़े फराहम किए, उसके अलावा उनको जो है वो तालीम दी गई, उनको हुनर सिखाया जाता है और फिर कोर्ट की हिदायत के मुताबिक उनको उनकी फैमिली से मिलाया जाता है। 4,900 ऐसे गुमशुदा बच्चे थे जिनके लवाहिकीन को ढूंढ कर उनको उनके लवाहिकीन से मिलवाया गया। ये मिसिंग बच्चे थे जो हमारे पास आए ब्यूरो में। फिर डोमेस्टिक वायलेंस के, जो बच्चों पर तशद्दुद के केसेस का आप सुनते हैं, ज्यादती का सुनते हैं, ऐसे 437 केसेस हमारे पास रिपोर्ट हुए जिसमें हमने मुलजिम को गिरफ्तार करवाया और बच्चे को हिफाजती तहवील में लिया। और इसमें से काफी बच्चे जो अभी भी ब्यूरो में मुकीम और हमारे साथ रह रहे हैं, सड़कों पे छोड़ के, हॉस्पिटल्स में छोड़ के चले गए, जो हमें रिपोर्ट है और हमने इनको अपनी नर्सरी में रखा। और फिर जो डिजर्विंग फैमिलीज अप्लाई करती हैं, उनको हमारा जो चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट है उसके थ्रू उनको बच्चों को दिलवाया, सूटेबल फैमिलीज को, इन्फेंट्स को, उनकी अडॉप्शंस करवाई। और सिर्फ पंजाब में नहीं, पूरे दुनिया में होता है एक्चुअली, लेकिन ऑफ कोर्स इसका हमने इस पे काबू पाना है और इस तरह करने के अपने बच्चों को एजुकेट करें, बच्चों को घर से अकेला नहीं जाने दें, क्योंकि ज़्यादातर वाक़यात पेश आते हैं बच्चा अकेले घर से निकल गया कोई क्रिकेट खेलने के लिए, किसी स्टोर पे जाने के लिए, उसके साथ जो है वो ज़्यादती का वाक़या पेश आता है। तो हमने मिल के इस चीज़ का मुकाबला करना है। और आप लोग अभी जो मौजूद हैं, आप अपने घरों में अब जाएंगे तो आप जवाब दूंगी कि स्टाफ की हायरिंग अगले 2 महीने के अंदर जो है वो स्टाफ जो है वो यहाँ पे नया आ जाएगा, क्योंकि उसकी SN अप्रूव हो गई है, प्रोसेस में, जैसे मैंने आपको बताया। तो वो यहाँ पर तो इसके बाद ज़्यादा बच्चे आ जाएंगे यहाँ पे जब ज़्यादा स्टाफ होगा। और अभी ऐसी कोई बात नहीं कि महदूद फ़ंड की वजह से बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो, इतना फ़ंड काफ़ी है कि जो हमने बच्चे, इसीलिए हमने कम तादाद अभी रखी ताकि इनका ख्याल यहाँ पे रखा जा सके, इनको बेहतरीन सहूलियात दी जाएंगी। और इतना अच्छा होगा कि बच्चे खुद मना करेंगे कि हमें वापस अपने माँ बाप के पास नहीं जाना जो हमें भीख मांगने पे लगाते हैं और हम यहाँ रहना चाहते हैं। यही कहानी पूरे हमारे तमाम पंजाब में 8 सेंटर्स हम चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वहाँ पे भी यही है कि बच्चे वापस नहीं जाना चाहते। तो ये बच्चे कहीं नहीं जा रहे जब तक कोर्ट में ये बच्चे प्रेजेंट होंगे और फिर वहाँ पे जो है ये जज जो है वो डिसाइड करता है इनका क्या करना है। तो उसी तरह और प्लस जो गुमशुदा बच्चे हैं साहिवाल के, आई थिंक ये उनके लिए भी बहुत बड़ा एक कदम है। तो मैं तमाम साहिवाल की जो कौम है, सारी पब्लिक है, उनको मुबारकबाद पेश करूँगी और चीफ मिनिस्टर पंजाब के शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने यहाँ पे हमारी सपोर्ट की इसको कायम करने में। देखिए, हमें एक फ़ंड, हमें गवर्नमेंट की तरफ से सालाना एक फ़ंड मिलता है जो हम जिस भी सेंटर में उसके हिसाब से उसको खर्च किया जाता है, जहाँ पे जितने बच्चे हैं, जहाँ पे उसकी जितनी ज़रूरत है। अगर कभी कोई प्रॉब्लम हो फिर आप ये सवाल पूछिएगा। थैंक यू। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो साहिवाल का इफ्तिताह किया है चीफ़ मिनिस्टर पंजाब की सपोर्ट के, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब की सपोर्ट के साथ। ये इदारा यहाँ पे इसकी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, ये इख्तिताम को पहुँचा है। आज हमने इसको वॉर फुटिंग पे स्टार्ट किया है। इसका जो हायरिंग का प्रोसेस है वो अभी मतलब अंडर प्रोसेस ही था, लेकिन हमने ज़रूरत समझी कि यहाँ पे ब्यूरो जल्द अज जल्द कायम किया जाए। तो हमने अपना एग्जिस्टिंग जो हमारा बजट था, जो रिसोर्स थी, उसके अंदर रह के ये ब्यूरो आज इनॉग्रेट किया है। और यहाँ पर हमने रेस्क्यू का काम पिछले 2 हफ्ते से शुरू कर दिया है। 50 बच्चे साहिवाल के लोकल्स जो चाइल्ड जो भीख मांग रहे थे सड़कों पे, उनको रेस्क्यू किया गया है। वो हमारे पास ब्यूरो में रह रहे हैं, उनको फूड, शेल्टर, उनको तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं यहाँ पे। और इनके जो है एजुकेशन और इनके जो हुनर सिखाने का काम है वो, क्योंकि अभी हमने इनॉग्रेट किया, हमारे प्लान्स हैं यहाँ के लिए, वो सब जल्द शुरू करेंगे। तो अगर कोई बच्चे से तशद्दुद का वाक़या या चाइल्ड बेगर नज़र आए या कोई ज़्यादती का वाक़या हो या कहीं बच्चा मुलाजमत पर और उस पर तशद्दुद किया जाए, तो हमें 1121 हमारी हेल्पलाइन है, उस पर इन्फॉर्म किया जाए।
جائے تو پھر ساہیوال کی ٹیم جو ہے وہ ایک کارروائی کرے گی اور بچے کو حفاظتی تحویل ملے گی. یہ اس کا مقصد ہے یہاں پہ بیورو قائم کرنے کا.